भारतीय सेना ने अपनी तैयारी और अपना अग्रेशन दिखा दिया है पाकिस्तान को और बता दिया है कि अगर आगे आने वाले समय में पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो खरा जवाब देने के लिए तैयार है। और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने कहा हमने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह किया। नूर खान एयरबेस पर भीषण अटैक किया गया, वहीं रहीम यार खान बेस को भी तबाह किया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया और हमारा एयर डिफेंस दीवार की तरह है। चीन की बनी PL-15 मिसाइल को भी हमने ढेर किया। एयरफोर्स का यह भी कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया है। सेना ने साफ कहा है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इस लड़ाई में कूद कर यह बता दिया कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देता है। Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System, or the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the Osa AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring. ये इन जानकारियों के साथ और अहम जानकारियां दी गई और बताया गया कि पाकिस्तान के हर एक नापाक हरकत का विनाश किया गया। तीनों सेनाओं के बीच में जबरदस्त तालमेल देखा गया। सरकार और 140 करोड़ लोगों का सहयोग रहा। ये भी सेना ने कहा है कि पाकिस्तान के हर एक नापाक इरादे को हमने पूरी तरीके से नाकाम किया, उसका विनाश किया। सुनिए। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने
विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। तो सेना ने यह बता दिया कि कैसे ड्रोन को मार गिराया है। लेजर गन से ड्रोन को मार गिराया वायुसेना ने साफ कहा है। तुर्की ही नहीं, सभी ड्रोन को मार गिराया है। तुर्की ने जो पाकिस्तान की मदद की थी ड्रोन को लेकर, उन ड्रोन को तो मार गिराया है, जबकि हर तरह के ड्रोन्स को भारतीय सेना ने मार गिराया है। लेजर गन से ड्रोन को मार गिराया है। हमारा सिस्टम सभी ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है और यह भी कहा गया है कि आगे की लड़ाई और बड़ी होगी। The numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter US systems and the well-trained Indian air defense personnel. कर्नल सोढी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों की शुरुआत में भारतीय सेना ने यह बता दिया है, अभी तो आपको छोड़ दिया, लेकिन अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो पाकिस्तान का सरनाश तय है। डेफिनेटली कल और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत जो हुई उससे बिल्कुल पाकिस्तान को साफ और स्पष्ट संदेश भारत ने दिया, अब मत हिमाकत करना, क्योंकि अब अगर तूने हिमाकत की तेरे को इससे भी करारा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यहां पे मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, आज तक हम सुनते आए थे दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास है। हमस आयरन डोम को पेनिट्रेट कर सका, लेकिन पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं पेनिट्रेट कर सका। यह वाकई में दिखाता है दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम भारत में है। बिल्कुल कर्नल सोढी, जैसा आपने कहा, और भारत ने यह बता भी दिया है कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय सेना काम करती है। कर्नल अनुराग में हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हमने तमाम सबूत सामने रखे हैं, हमने बताया है कौन कौन से एयरबेस हमने मार गिराए, और सबसे बड़ी बात कि चीन के दम पर पाकिस्तान युद्ध लड़ने की बात कर रहा था, लेकिन उनसे मिले हुए हथियार कैसे फुस किए गए, ये भी सेना ने बताया सबूतों के साथ। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश है। जो बात करता है बहुत सीरियसनेस के साथ करता है, कोई उसको हल्के में नहीं ले सकता। इसीलिए जब आपने ब्रीफिंग देखी तो एक एक बात के साथ साथ सबूत साथ साथ रखे गए। दूसरा ये बात आप जान रखें कि भारत एक नया भारत है, ये पुराना वाला भारत नहीं है। इस बार आपने जितनी भी टेक्नोलॉजीज देखी वो सारी की सारी होम ग्रोन है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर होम ग्रोन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजी लाई गई है और जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, उन सबको इंटीग्रेट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिस्टम नज़र आया है, जो कि इतने बड़े युद्ध के दौरान और इतने लंबे एरिया को कवर करने के बाद इतना किसी भी आपने विश्व में कहीं नहीं देखा होगा। तो बड़े बड़े देश जो अपने बात कहते हैं कि हमारे पास बहुत मजबूत सिस्टम है, भारत ने उनको दिखा दिया कि हमारा देश भी बहुत मजबूत मिलिट्री पावर है और आने वाले समय में किसी भी तरह का अटैक आएगा उसको रोकने में सक्षम है। लेकिन कैप्टन सिंह, एक बात भी भारत ने साफ कर दी है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। नाम लेके बता दिया कि टर्की के ड्रोन को भी मार गिराया है, चीन के खिलौनों को भी मार गिराया है, और आगे जो भी पाकिस्तान की मदद करेगा उसको भी देख लेंगे। बिल्कुल, भारत